Good evening. My name is Ranjana Mehta. You all can call me Ranjana. Okay. So let us just a second. Yeah. Okay. So today's quote of the day is, excellence is the gradual result of always striving to do better. Now, there are three words in this quote that we got to know the meaning of all these three words. है ना? Excellence is the gradual result of always striving to do better. इसमें तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमें मतलब जानने की जरूरत है. First is excellence. Excellence means the quality of being outstanding or the very best. अगर हम हिंदी में बड़े ही सरल शब्दों में कहेंगे तो इसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ होना, किसी भी चीज में सर्वश्रेष्ठ होना. Superiority, the quality of being outstanding or very best, मतलब अच्छे से भी अच्छा. ये एनोटेट मत कीजिए आप लोग. And the second one is gradual. Gradual means moving step by step, slowly. मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए जब हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो उसे बोलते हैं gradual. Just a second, give me a second. मैम ये कौन कर रहा? No, it will not happen anymore. Okay. Gradual means moving step by step, slowly, and striving, make great effort to achieve something. मतलब प्रयास करना, किसी भी चीज को पाने के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करना. तो excellence is the gradual result of always striving to do better का मतलब है कि किसी भी चीज को पाने के लिए अगर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लगातार प्रयास करते हैं तो हम उस चीज में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, उस चीज में हमें महारत हासिल हो जाती है. इट्स द सिंपल मीनिंग. अगर कोई काम हमसे नहीं हो रहा है तो हम धीरे धीरे लगातार उसके लिए प्रयास करते रहेंगे बिना निराश हुए तो हमें जरूर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. इट्स द सिंपल मीनिंग. Clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So today's word of the day is disbursement. The word of the day is disbursement. Yeah, it's a little long word and it is a long but not difficult to say. Disbursement. If you are going to divide it into three equal parts, disbursement, then it is not at all difficult to pronounce. अगर हम इसे तीन भागों में बांट कर बोलेंगे, dis, then burst, then ment. तो disbursement. Disbursement. Okay. And disbursement means होता है payment of money. Payment of money means भुगतान करना, चुकाना. किसी भी चीज का पेमेंट अगर हम मॉनिटरी फॉर्म में करते हैं, पैसों की लेन देन में अगर हम पैसे चुकाते हैं किसी भी चीज के लिए तो उसे कहते हैं डिसबर्समेंट. एंड अब चूंकि इसमें कुछ क्रिया हो रही है इसीलिए दिस इज अ वर्ब. ओके, सो शैल वी रीड इट वन मोर टाइम. डिसबर्समेंट. एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. Disbursement. Yes, Mukesh Rana. Yes. Any problem? Unmute yourself if you want to speak something. Okay. Now come to synonyms of disbursement. Synonyms means पर्यायवाची. डिसबर्समेंट के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? Synonyms means पर्यायवाची. पर्यायवाची means similar meaning. Okay, so the very first word is disbursal, then expenses, then spending, and then expenditure. Disbursal means the same as the disbursement means चुकाना, भुगतान करना, पैसों का पेमेंट करना. Expenses means खर्चे. Spending means हमारे खर्चे.
and same for the expenditure, हमारे खर्चे. So all means the same. Good evening, madam. Yes, good evening. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Okay. Now come to the sentence from disbursement. मतलब disbursement का हम वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं. So Medha receives a monthly disbursement from her renter. Medha receives a monthly disbursement from her renter. Receives मतलब मिलता है. मेधा को मिलता है मंथली रेंट, मंथली भुगतान मिलता है उसके रेंटर से. इट्स सिंपल मीन मेधा को उसके रेंटर से मंथली भुगतान मिलता है. तो मंथली भुगतान के रूप में रेंटर क्या पे करेगा, किराया ही पे करेगा. सिंपल सी बात है. तो इन प्लेस ऑफ रेंट वी कैन इजिली यूज डिस्बर्समेंट, एंड इन प्लेस ऑफ रेंट इफ वी आर यूजिंग डिस्बर्समेंट इट लुक्स दैट your vocabulary is little good, right? Before in place of disbursement we could have used rent, right? Medha receives a monthly rent from her renter. मेधा अपने रेंटर से हर महीने रेंट रिसीव करती है ना. सिंपल मीनिंग यही है. मगर अगर हम रेंट के बदले डिस्बर्समेंट लगाते हैं तो इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है और आपका सेंटेंस पावरफुल लगता है, राइट? ओके. यू कैन ऑल्सो विथड्रॉ योर मनी बाय सबमिटिंग अ रिटर्न डिस्बर्समेंट रिक्वेस्ट. मतलब विड्रॉ मीन्स आप अपने पैसे निकाल सकते हैं. कहाँ से निकाल सकते हैं? बैंक से निकाल सकते हैं, या LIC से निकाल सकते हैं, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप अपने पैसे निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप लिखित रूप में उसको एक एप्लीकेशन देते हैं. डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट मीन्स सिंपल लिखित रूप में एक रिक्वेस्ट देना. दैट इज सेड टू बी disbursement request. So you can withdraw your money by submitting a return disbursement request. तो इस disbursement request के बदले you could have written application, right? If you want to withdraw your money, you simply have to submit an application, है ना? Simple sentence में हम यही कहते हैं. मगर if you want to show like yes your vocabulary is good and your sentence is looking good, powerful sentence, you can use this word disbursement and सामने वाला क्या होगा, इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ इसकी वोकैबुलरी अच्छी है. ओके, शैल वी प्रोसीड? ओके, सो टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन. सेल्फ मतलब मुझे लगता है सबको पता होगा. सेल्फ मतलब खुद का. सेल्फ मीन्स खुद का. इंट्रोडक्शन मतलब परिचय देना. और परिचय को अगर हम हिंदी में और सरल शब्दों में कहेंगे तो अपने बारे में बताना. इट सिंपल मीन्स यानी कि खुद के बारे में बताना. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई सेल्फ इंट्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट. व्हाट इज द नीड ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड व्हाट मेक्स यू डिफरेंस व्हेन यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन. व्हाट मेक्स यू डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस व्हाइल गिविंग द सेल्फ इंट्रोडक्शन? व्हाट इज डिफरेंस? तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्या जरूरत है सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की? और सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से ऐसा क्या होता है जो आपको सामने वाले से या एक पूरी भीड़ से अलग करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग, है ना, लाइक एज अ स्टूडेंट इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू स्कूल, एज अ एम्प्लॉय इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी, आप एज अ स्टूडेंट आप कहीं भी आप नए क्लास में जा रहे हैं, या आप एक नए एम्प्लॉय हैं, आपको कहीं नई जगह पे जॉब मिली है, या फिर हम सैकड़ों अजनबियों के साथ ट्रैवल करते हैं, तो कहीं भी बातचीत का आधार कहाँ से शुरू होता है? तो आदमी इंट्रोडक्शन से ही शुरू करता है ना. वी कैन स्टार्ट एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, वी कैन स्टार्ट एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेल्फ इंट्रोडक्शन. ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को, मतलब अपने इंट्रोडक्शन देते हुए किसी भी कम्युनिकेशन को शुरू करना, किसी भी वार्तालाप को शुरू करना. और इससे भी जरूरी अगर कुछ है तो वो ये है कि आजकल आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. और लेट अस स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन. यू मे स्टार्ट विद योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. दिस मे पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट. तो इसीलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है, ये बहुत छोटी सी और सिंपल सी चीज है. तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ठीक, ओके.
So first thing is that we should always start with greeting. Greeting means शुभकामनाएं, हिंदी में बोलते हैं शुभकामनाएं। तो हमेशा कभी भी अगर आप अपनी बातचीत शुरू करते हैं तो आपको एक शुभकामना के साथ शुरू करना है। अब शुभकामना, कैसी शुभकामना? This is a question. How to start? What kind of greeting can we use? So the simple thing is hello. If you are going to start any kind of conversation, any kind of communication, or any kind of interview you are facing, or you are sitting in between several unknown people, है ना? आप किसी जानने वालों के बीच बैठे हैं, किसी फेमिलियर लोगों के बीच बैठे हैं, या किसी अनजाने माहौल में बैठे हैं, अगर वहां आपको किसी के साथ कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप शुरू करनी है तो आप हेलो से शुरू कर सकते हैं। सिंपल है ना? हेलो, माय नेम इज दिस, और हेलो, हाउ आर यू, हाय, हाउ आर यू डूइंग, कुछ भी। एंड हेलो के अलावा वी कैन से हाय। एंड जब हम शुरू करते हैं, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग, एनी कॉन्वर्सेशन, वी शुड वर्क विद आवर वॉइस मॉड्यूलेशन। हमारी जो भाषा है थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए जब हम अपनी कॉन्वर्सेशन या अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। यस यस, एनी डाउट? Yes. हाँ, प्लीज आस्क, बोलिए। हेलो, I did not understand it. which word you did not understand? What are you saying? You are not understanding. Have you joined now? What's your name? आपका नाम क्या है? Who is this? Let me know your name. मैं ये बता रही हूँ कि जब हम किसी के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब खुद का परिचय देते हुए शुरू करते हैं। तो जब हम खुद का परिचय शुरू करते हैं तो हमेशा हमें एक ग्रीटिंग के साथ शुरू करना चाहिए। ग्रीटिंग मतलब शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं कैसी कैसी हो सकती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर हुआ? ठीक है। किन किन वर्ड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रीटिंग्स के रूप में ये मैं बता रही हूँ। यू कैन स्टार्ट विद हेलो, यू कैन स्टार्ट विद हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके, और यू कैन स्टार्ट विद हाउ आर यू डूइंग, और यू कैन स्टार्ट विद बोथ द वर्ड्स हेलो, हाउ आर यू डूइंग, हाय, हाउ आर यू डूइंग, और सिंपली यू कैन स्टार्ट विद हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, सिंपल। उसके अलावा गुड मॉर्निंग, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप दिन के हिसाब से, दिन के समय के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। मैंने किसी गुड चीज मॉर्निंग अगर आपको गुड इवनिंग भी कहा था, आपने सोचा कि मैंने आपको कहा है। समवन सेड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट? समवन सेड नो, किसी ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने उसको समझाया। Tell me again something. Okay, so yeah, that's very good if you said good morning. Okay, so आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि बात कैसे शुरू करनी है तो आप समय के पहर के हिसाब से भी शुरू कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग से शुरू कर सकते हैं, इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग से शुरू कर सकते हैं, और अगर दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून से आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर, नाइस टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू सी यू को वी कैन एक्सप्रेस इन वन मोर डिफरेंट टर्म, that is nice to meet you. Either you can say nice to see you or you can say nice to meet you. आप nice to see you भी कह सकते हैं और nice to meet you भी। अच्छा, who is there? Please mute yourself. आप mute कर लीजिए, disturbance आ रही है यहाँ पे। Everyone, please mute yourself. Otherwise, I have to mute. Okay, that's very good if you're understanding. Anyone having any doubt? ये हम कैसे शुरू कर सकते हैं? No, ma'am. No. Sure. Shall we proceed? आगे बढ़े? Yes. Yes, ma'am. Okay. Nice to you का मतलब मैम हिंदी में क्या बोलते हैं? Sorry. Hello. हाँ हाँ, हेलो। Nice to see you. मैं बोल रहा था Nice. हाँ जी। Nice to see you.
या नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उसको आप या तो नाइस टू सी ये तो यू कह दूसरा हो सकते गया। हैं। पहले का नाइस टू सी यू, नाइस टू सॉरी सी सर, यू को हिंदी में क्या बोलेंगे? बोल रहे हैं आपसे नाइस टू मिलकर, सी यू आपको देख, आपको से मिलकर खुशी हुई। सी मतलब आपको, सी मतलब नॉर्मल मीनिंग होता है देखना, मगर आपको देखकर खुशी हुई से ज्यादा बेहतर लगता है आपसे मिलकर खुशी हुई। तो नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू सी यू बोथ आर सेम मीनिंग, है ना, बस बोलने का तरीका अलग, ओके वो सेम। सेम मीनिंग सेम है। सो इधर यू कैन से नाइस टू सी यू, हेलो नाइस टू सी यू, हाय नाइस टू मीट यू, हाय हाउ आर यू डूइंग, और गुड मॉर्निंग, हेलो it was pleasure meeting with you, you can to say मैम। with that also. Yes, मैम आप कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो? class has not been mentioned here, यहाँ तो spoken English की क्लास चल रही है, किसी भी क्लास के बच्चे हैं। मैम कोई सी भी क्लास? Yes, I guess. ओके। Okay, shall we proceed? आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है? यस मैम। Are you sure? No doubt? Okay, so the Hello. second thing, yes, hello, मैम ये yes, बोल रहे हैं कि लास्ट में मतलब जब जाने लगते हैं तब तो वो बोलते हैं नाइस टू मीट यू। तब भी बोल सकते हैं, और अगर आप, मैं अगर जैसे हम किसी को जानते हैं तब भी बोल सकते हैं। अगर हम किसी पहचान वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं, अगर बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, गुड टू सी यू, नाइस टू सी यू, तब भी बोल सकते हैं। और अगर किसी अननोन से मिल रहे तो आप जाते समय बोल दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट्स योर नेम। उसके बाद अगर आप पहले जैसे आपने शुरू किया हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, उसके बाद आपका सेकेंड सेंटेंस बनेगा माय नेम इज डैश। माय नेम इज डैश मीन्स यू गॉट टू फिल योर ओन नेम। ओके, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग टू समवन यू गॉट टू फिल योर ओन नेम, जो भी आपका नाम। हु इज दिस, म्यूट योरसेल्फ। So everyone please mute yourself, mute कर लीजिए अपने आप को। So yeah, so we can start with my name is Ranjana Mehta, my name is Neha Bhatia, my name is Shweta Singh. Whatever is your name, you can start with that कि मेरा नाम ये है। And in place of my name is, you can also say I am Rajendra Prasad, I am Shweta Singh, I am Ranjana Mehta. Okay, you can either start with my name is और I am, दोनों का मतलब यही है कि मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है। अब जैसे अगर मैंने शुरू किया तो hi, how are you doing, my name is Ranjana Mehta, this way you can proceed. Clear? Any doubt? Any more doubt? नो मैम। नो मैम। Okay, shall we proceed? आगे बढ़े। Okay, so next question रहेगा when is your birthday। मतलब आपको ये बताना है, आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आपको बताना है। ने तो my birthday is on whatever is your date of birth, whatever is your date, you got to mention that one. Okay, my birthday is on 15 August, or my birthday is on 16 January, or my birthday is on 10 September. तो जो भी आपका डेट है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, यू गॉट टू फिल द डेट, है ना, जो भी आप जिस दिन भी आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अपना, वो आपको फिल करना है, राइट। लाइक How old are you? ओके, सो 3 चीजें हो गई, हेलो, how are you doing, or good morning, how are you doing. Secondly, my name is so and so. Okay, my birthday is on 15 August. इतना दूर क्लियर है सबको? Okay, ma'am. यस मैम। ओके, मुकेश राणा इज रेजिंग योर हैंड, एनी डाउट? आपको कोई डाउट No, है? ma'am. आपने हाथ रेज किया है।
ओके, कोई डाउट नहीं है तो क्या आप मुझे ये 3 सेंटेंस बोल के दिखाएंगे कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है खुद को? अगर मैं आपसे पूछे ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप कैसे शुरू करेंगे? Hello, good morning, ma'am. My name is Mukesh. ओके, My birthday Then? is on. My birthday Okay. is on ओके 28th Then- August. ओके, दैट्स वेरी गुड, नाइस। ओके, एनीवन वांट टू गिव देयर इंट्रोडक्शन? मोस्ट वेलकम। कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है? यस प्लीज, हु हैव रेज्ड योर हैंड? योर नेम इज नॉट कमिंग हियर। Okay, so now the fourth question will be how old are you? मतलब आप कितने साल के हो जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो। माय बर्थडे इज ऑन सच एंड सच, माय बर्थडे इज ऑन 16 जनवरी। तो उसके नेक्स्ट सेंटेंस होगा कि इस समय में कितने साल का हो गया हूँ। सो वन थिंग, व्हाइल यू आर टेलिंग योर अबे हट। एज, यू हैव टू, हु इज दिस? माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन इन माय क्लास? आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन अपने रूम में रखिए, यहाँ मत लाइए। ओके, तो जनरली हिंदी में बोलते हैं इतना कंप्लीट हो चुका है, जैसे 13 कंप्लीट हो गया है, 14वां रनिंग है ना। जनरली हमारी ये टोन रहती है कि 15 कंप्लीट हो गया है, 16 रनिंग है, या 20 कंप्लीट हो गया है, 21 रनिंग है। तो हमें यहाँ पे अपनी कौन सी एज मेंशन करनी है? जो एज आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। वॉट एवर इज योर रनिंग एज, यू आर नॉट गोइंग टू राइट देयर। एम आई क्लियर? अगर आप 20 साल के हो चुके हैं, 20 साल 4 महीने के हो चुके हैं, तो जनरली हिंदी में लोग बोलते हैं 21वां चल रहा है ना। बट यू आर नॉट सपोज टू राइट 21 हियर। आपको 21 यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको अपना आपका जो एज कंप्लीट हो चुका है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई एम 20 years old. ओके, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। Okay, I'm sorry for the inconvenience. Yes. So whatever the age you have completed, you have to mention that one. ठीक है, जैसे मैंने बोला अगर आप 20 साल 4 महीने के हुए हैं, तो हिंदी में नॉर्मल हम बोलते हैं 21वां चल रहा है ना, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना है, जो आपका कंप्लीट हो चुका है वो एज आपको यहाँ पे लिखनी है कि आई एम 20 years old। ठीक है, तो अब तक 4 चीजें हो गई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ABC, my birthday is on dash date, and I am dash year old, 20 years old or 30 years old or 25 years old, whatever it's. Okay, like say for example I am 24 years old। ठीक है, अगर आप 24 years 6 महीने के हैं, तो हिंदी में लोग बोलते हैं 25वां चल रहा है, मगर आपको वो नहीं लिखना है कि 25वां चल रहा है, 25, यू नो, मतलब आपको यहाँ पे 25 मेंशन नहीं करना है, आपको यहाँ पे 24 मेंशन करना है, जितना आपका एज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, शैल वी प्रोसीड? एनीवन हैविंग एनी डाउट? आगे बढ़े? नो नो। Yes, यस ma'am. मैम। Okay. Okay, so your next question is where are you from? This is important question। मतलब आपको ये बताना है कि आप कहाँ से हो। जनरली इसमें 2 तरह के आंसर्स आते हैं, either you can mention your country name or you can mention your state name, the particular region you belongs to। अब इसका क्या मतलब होता है, कंट्री नेम मेंशन करें या स्टेट का नेम मेंशन करें, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे समझ में आएगा, हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इफ यू आर मीटिंग टू अ फॉरेनर, इफ यू आर मीटिंग विद अ पर्सन दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, दैट टाइम यू आर गोइंग टू मेंशन योर कंट्री नेम, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, अगर आप किसी फॉरेनर से मिल रहे हैं, किसी दूसरे देश के व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो आपको अपनी कंट्री का नाम मेंशन करना है, इट्स एज सिंपल। ठीक है, आई एम फ्रॉम इंडिया अगर मैं किसी Yes, ma'am. विदेशी से मिल रही हूँ। ठीक है,
और अगर आप अपने ही देश के किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, जनरली विदेशी से मिलना कम होता है, हम जब किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तभी हमें कुछ फॉरेनर्स मिलते हैं, है ना, और वहां पे हम अपना कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम इंडिया, है ना। वो भी आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इंडिया में ही घूमने आया है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, और अगर आप अपने ही देश के व्यक्ति से मिलते हैं तो लाइक आई एम फ्रॉम मुंबई और आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, दिस वे। बेसिकली यू आर गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ योर स्टेट। क्लियर? Yes, क्लियर टू एवरीवन? अगर आप किसी फॉरेनर से मिल रहे हैं तो आपका आंसर होना चाहिए आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, और अगर आप अपने ही किसी देश के व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम हरियाणा। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, और उसके अलावा ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपकी नेशनैलिटी हुई इंडियन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है या फिर आप दोनों तरीकों से रिप्लाई कर सकते हैं। ईदर यू कैन से आई एम फ्रॉम इंडिया और आई एम एन इंडियन, दिस वे। दोनों ही सूरतों में आपका आंसर करेक्ट है, बट बोलनी है, दोनों नहीं बोलनी है ना। मैं इंडिया से हूँ या मैं एक इंडियन हूँ, दोनों ही बोल सकते हैं, मगर एक बोलना है, दोनों में से दोनों नहीं बोलना। ठीक है, अगर कोई ब्रिटेन का है तो ब्रिटिश बोलेगा, कोई यूरोप का है तो यूरोपियन बोलेगा। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम इंडिया और आई एम एन इंडियन। क्लियर हुआ? Till now you have learned 5 things. First, the greeting, hello or good morning or good afternoon. Secondly, my name is Shweta Tiwari or whatever it's so. Then my birthday is on 26th November. Then I am 26 years old. Then I am from India. और अगर मैं अपने ही like you all are Indian तो मैं बोलूंगी I am from West Bengal. Clear? ठीक है, आगे बढ़े? Any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके ओके, उसके बाद आता है आई लिव इन। अब some people are having doubt कि number 5 and number 6 both are looking similar. I am from and I live in, both तो सेम ही हुआ है ना, कि हम यहाँ से हैं या हम रहते हैं, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ। तो ये अलग अलग क्वेश्चन क्यों? क्योंकि दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे से सेंस है, अगर जैसे मैंने बोला कि आप किसी इंडियन से ही खुद को परिचय दे रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम पंजाब और आई एम फ्रॉम राजस्थान, लेकिन राजस्थान के किस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हैं वो चीज आपको यहाँ मेंशन करनी है। बेसिकली आपको सिटी का नाम मेंशन करना है। आई लिव इन वट एवर द नेम ऑफ सिटी, सो यू आर गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ सिटी। ओके, जैसे आई लिव इन वेस्ट बंगाल, सो आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई लिव इन रूपनारायणपुर, सो दिस शुड बी माय आंसर। मैं वेस्ट बंगाल के रूपनारायणपुर इलाके में रहती हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और वेस्ट बंगाल के रूपनारायणपुर इलाके में रहती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही डिफरेंट हैं। आपको समझ में आया ये चीज? अगर आप पंजाब से हैं तो आई एम फ्रॉम पंजाब एंड आई लिव इन चंडीगढ़, दिस वे यू कैन रिप्लाई। आ रहा है समझ में? अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान के जयपुर में रहते हैं तो आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड आई लिव इन जयपुर। ठीक है, अगर आप झारखंड से हैं, झारखंड के रांची में रहते हैं तो आई एम फ्रॉम झारखंड, आई लिव इन रांची। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, सो कितने क्वेश्चंस हो गए अब तक? अब तक 6 क्वेश्चंस हो गए। ओके, सो समवन वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद ऑल दीस 6 क्वेश्चन? प्रकाश कुमार, आप बोलना चाहेंगे? कितना सीखा इतना देर में? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए छोटा सा, अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सिखाया। What happened? He has put his camera off. Why? कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, और अपना इंट्रोडक्शन अगर आप लोग बारी बारी देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आया। और अगर इसमें से 1-2 क्वेश्चन भूल भी जाते, यस प्लीज। I have a doubt. I'm from Haryana, but currently I live in Delhi. Okay. Should I say So I'm you can from mention Delhi? yeah, you can mention this one. I am from Haryana, but I live in Delhi. It's simple. Okay. It's not that कि हरियाणा की सिटी में रहना, आप currently wherever you are living, your whatever is your present current address, you are going to mention that one.
ओके अब एड्रेस का मतलब ये नहीं Fine. कि आप पूरा एड्रेस छाप दीजिए 10 लाइन का ओनली द पर्टिकुलर एरिया लाइक यू टोल्ड यू लिव इन दिल्ली सो आई लिव इन दिल्ली दैट्स करेक्ट दैट्स वेरी Okay. करेक्ट ओके Okay. एनीवन एनी डाउट और अगर डाउट नहीं No. है तो प्लीज एनीवन गिव मी योर इंट्रोडक्शन आई विल बी हैप्पी Yes, ma'am. यस हु इज दिस व्हाट्स योर नेम My name is MD Riaz Khan. ओके प्लीज स्टार्ट रियाज Hello. Nice to meet you. Good evening, ma'am. यस My name is MD Riaz Khan. My birthday is on 8th September. I am 70 years old. I am from Bihar in Patna. I am from Bihar and I live in Patna, right? जी Thank you very much. बहुत अच्छा बोला Thank- आपने ये ताली बजाने बजा मैं जरूर बजाऊंगी बहुत अच्छा बोला आपने और एक चीज है इसमें थोड़ी सी मिस हो रही है वो ये है कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए अभी आपने 17 बोला या 70 बोला ये समझ में नहीं आया है ना तो अब जब सामने वाले को वैसे तो सामने वाला देख के समझ जाएगा कि आप 70 को कि 17 की हो 17 बोला मैं। Pronoun- हाँ ठीक है मुझे पता है 17 ही होगा लेकिन it's not about 70 or 17 any word if you are speaking any word your pronunciation has to be very clear to give a Okay, ma'am. good impression है ना pronunciation हमेशा clear होनी चाहिए इससे बहुत अच्छा impression आता है सामने वाले की Okay, ma'am. okay that's very good shall we proceed so I live in Mumbai or I live in Chennai this way you reply or you I live in Delhi I live in Gujarat Haryana whatever it's so you may give any of the answer okay so this is the final statement that how you are going to introduce yourself so I want everyone to take the screenshot of this one अगर अभी तक भी किसी को नहीं समझ में आया है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा 100% आपको समझ में आ जाएगा कि इन अ शॉर्ट वे हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ले लिया स्क्रीनशॉट सबने Yes, ma'am. Can I introduce myself? प्लीज गो अहेड प्लीज शुरू Thanks करो for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Jassi. I'm from Okay. UP. I live in Pilibhit. I'm 12th Okay. standard. My birthday is on 14 January. I am Okay. 19 years old. दैट्स I वेरी am गुड interested in speaking English. Yes, ma'am. Wow, so good. That's so great of you. And the very first sentence you told, thank you for giving me this opportunity. That is very good. A big hand for that. I'm so impressed. बोल रहा Sorry. Sorry. Anyone having any doubt? Okay. तो इसमें क्या होगा? Hi, my name is whatever is your name. You got to write your name. Then my birthday is on whatever is your birthday date. You got to write your date. है ना? Then I am dash year old. So whatever is your age, you got to write your date, age. Sorry. Then I am from whichever particular area, whichever particular state. You can mention the state. Then I will be dash. है ना? तो हाय मेरा नाम ये है मेरा बर्थडे इस तारीख को है मैं इतने साल की हूँ और मैं इस देश से इस स्टेट से हूँ उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर सिटी में रहती हूँ है ना ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं सैल्यूटेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके सो यहाँ तक समझ में आया और एनीवन वांट टू गिव देयर इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन और देना चाहता है अपना No, ma'am. अच्छा लगा क्यों नो Yes, मैम ma'am, मैं देना है। प्लीज Ganesh no your name is Ganesh right Ma'am, can I So, try? ma'am, good evening. just a second Arvind just a second let me complete with Ganesh yes Ganesh you was telling no आप बोल रहे थे ना Ganesh Hello, ma'am. yes yes good evening My name is Ganesh. I am from UP. okay I live in. I am a student. I am an artist. My birthday is on. yes If no one is introducing themselves, then may I? yes please go ahead Tarun right Yes, ma'am. Hey there, everyone. Tarun here. I'm 21 year old. My birthday is on 13th of June. I'm from Delhi, and I'm from Delhi. Sorry, I'm from Haryana, and currently I live in Delhi. okay
Thanks. Very good. Well tried. Anyone else? Can I tell me, ma'am? Yes. What's your name? Okay, you My introduce name is yourself, then I will get to know your name. Okay, please go ahead. Hi, my name is Prakash Kumar. My Okay. birthday is 17 August. Okay. I My am birthday. 18 years old. Okay. I am from Bihar. I live Okay. in Gaya. Okay, that's very good. Okay. Anyone else? Anyone else want to introduce themselves? Yeah, please come on. Hello, ma'am. ऐसा सोचो कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, है ना, और ये आपकी जॉब की इंटरव्यू है. बस शुरू हो जाओ. First impression is the Hello. last impression. Yes, someone was telling. Yes, I can please. try, ma'am. I can Yes, try. please. Yes, please go ahead. Hello, my Hello. name is Neeraj Yadav. My birthday on 15 June. Okay. I am 20 year old. I am from Wait. UP. I live in Okay. Mau. Okay, well tried. But you know what? What you have said? I am 20. What is this 20? 20 होता है शायद, है ना? हाँ, 20. हाँ, तो वही मैंने बोला ना कि प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होनी चाहिए. कोई बात नहीं, हो जाता है, ये तो चलता है. एक दो बार प्रैक्टिस करने से. और प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस करनी है आईने के सामने खड़े होकर, जोर जोर से. कमरा बंद कर लो अपना और आईने के सामने खड़े होकर जोर जोर से बोलो. डेफिनेटली आ जानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है. अच्छा, और किसी को इंट्रोडक्शन देना है? हम आगे बढ़े, बोलो. Anyone want to try or shall we proceed? May I? Yes, please go ahead. Hi, my name is Arvind and my birthday is on 4th of September and I am 22 years old and I'm from Bihar and right now currently I live in Begusharai. Very good. That's very good, Arvind. Okay, shall we proceed? That's very good. Impressive. आप लोगों ने थोड़ा सा सीख लिया मेरे पढ़ाने से, मुझे अच्छा लग रहा है. ओके ओके, तो वहां आपका टॉपिक खत्म हुआ. अब हम थोड़े से एडजेक्टिव्स कर लेते हैं. एडजेक्टिव्स क्या होता है? एनीवन वांट टू ट्राई? एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज करने से पहले एडजेक्टिव्स मींस होता है क्वालिटीज बताना, है ना. और अगर हिंदी में अगर हम if you want to answer in one word, there is one word that is describing words. Describe means वर्णन करना. वर्णन करना मतलब बारे में बताना कि कोई भी चीज कैसी हो सकती है या कोई भी चीज कैसी है ना. अब if I'm going to ask how is your mother, तो वेरी पहला सेंटेंस आएगा she is very caring, बहुत ख्याल रखती है ना, यही आता है. और she is very beautiful, है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. So जब हम किसी की क्वालिटीज बताते हैं, यानी कि हम किसी की विशेषता बताते हैं, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव. ठीक है, इतना सा जानना काफी है ये वर्कशीट करने के लिए. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज ऐड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टू द फॉलोइंग नाउन्स. ठीक है, अब इस there is a noun in each and every sentence and you have to add an adjective. Okay, हर सेंटेंस में एक नाउन है और आपको उसके लिए एक एडजेक्टिव ऐड करना है. ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि देयर इज अ पर्टिकुलर और वन वर्ड और अ पर्टिकुलर आंसर, है ना. कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, है ना. लाइक अ डैश वुमन. तो एनीवन वांट टू से व्हाट एडजेक्टिव वी कैन ऐड हियर? कि हम यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं? ब्यूटीफुल हम कौन सी वुमन. वेरी गुड, वी कैन ऐड अ ब्यूटीफुल यू सेड. Yes, ma'am. A beautiful Okay. A woman. beautiful one. Wow, that's very good. A beautiful woman, or a tall woman, or a graceful woman. Any adjective you can add. Okay. No problem कि हाँ beautiful बोल दिया तो अगर हम कुछ और लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा. नहीं, एडजेक्टिव आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बस उस मायने में वो सही होना चाहिए. अब सही होने चाहिए से क्या मतलब है? अगर मैं बोलती हूँ a handsome woman, will it be correct? No, Will it be ma'am. correct? It will not be correct because handsome word हम लड़कों के लिए यूज करते हैं, है ना, पुरुष जाति के लिए यूज करते हैं. तो अगर वुमन है तो a beautiful woman, a smart woman, a tall woman, or a graceful woman. Anything you can add? Okay, shall we proceed? A dash night. So here your noun is night, है ना. आपका नाउन है नाइट और आपको इसमें एक एडजेक्टिव ऐड करना है. क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग?
Dark night. Night. So what adjective can we add here? I'm just asking. No. Wonderful night. Yes, that's very good. A wonderful night, a beautiful night. And a beautiful long is a night. word that you can add, yes, in any kind of noun. A long night, a dark night, a black night. Okay, anything you can add. Now, the next sentence is a dash dress. Dress. Your Dirty. noun is your dress. Dirty. Okay, it means you was Yeah. playing in mud, right? है ना, आप कीचड़ में खेल रहे थे इसलिए आपकी ड्रेस डर्टी हो गई. A dirty dress can also be correct. It's not that it is wrong. It is not wrong. It is correct. But you can add any of the adjective. And what we can add? A new dress, a beautiful dress, a costly dress, a white dress, a green dress. Any kind of adjective we can add, right? Okay. The next is a dash garden. A lovely garden. A lovely garden. That's very good. Anyone else? And और क्या एडजेक्टिव हम ऐड कर सकते हैं गार्डन में? Huge garden. A huge garden. Okay, but like a green garden. Yeah. Yes, ma'am. Hi. Hello, ma'am. Hello. अरे मैम ने तो क्लास लीव कर दिया भाई. हो जाएगा यार. हाँ, आ गई ऐड हो गई. I'm sorry, there was certain disturbance. I don't know what happened. My connection has been lost. I'm so sorry. Just a second. Give me a second.
Okay, I'm sorry for the inconvenience. Okay, so a big building or a strong building, both are correct. Shall we proceed? Okay. Now there is a question, subject and predicate. Okay. And what you have to do, direction, color the subject blue and predicate red. Let us just ignore this one, है ना, कि blue से करना है या red से करना है. लेकिन बस हमको ये बताना है कि what is subject and what is predicate. तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि what is a subject and what is a predicate. Okay. So in very simple words, the doer of your sentence is said to be the subject. Okay. मतलब किसी भी सेंटेंस में कोई काम जो हो रहा होता है तो उसको करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है. Say for example, Ranjana ma'am is teaching. Okay, this is a sentence. So what is happening in this sentence? Someone is teaching, है ना? Someone is teaching. Now who is teaching? Ranjana ma'am is teaching. So who will be the subject? Ranjana ma'am. ठीक है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है. In English, the doer is your subject. और उसके अलावा अगर कोई सेंटेंस किसी के बारे में है, ओके, लाइक रंजना मैम इज वेरी स्ट्रिक्ट. ओके, तो रंजना मैम के बारे में एक सेंटेंस है, शी इज वेरी स्ट्रिक्ट. तो जिसके बारे में अगर सेंटेंस कहा जा रहा है या जो करने वाला है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. ये सिंपल और सरल एक्सप्लेनेशन है इस चीज का कि जो जिस काम को कर रहा होता है, द डूअर इज योर सब्जेक्ट. ओके, और सब्जेक्ट को छोड़ के उसके बाद जितनी भी चीजें बच जाती हैं कि वो क्या कर रहा है या उसके बारे में क्या बोला जा रहा है. जस्ट नाउ, जस्ट लाइक आई गेव यू एन एग्जांपल, रंजना मैम इज टीचिंग. सो रंजना मैम इज द डूअर, सो रंजना मैम विल बी योर सब्जेक्ट. इज टीचिंग, वो क्या कर रही है, पढ़ा रही है, तो दैट विल बी योर प्रेडिकेट. दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग हैपनिंग. जो करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है और उसके अलावा जितना भी बच जाता है उस सेंटेंस में वो प्रेडिकेट होता है. क्लियर हो गया ये चीज? समझ में आ रही है? Yes, ma'am. तो shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Okay, so your very first sentence is the horse likes to eat hay. घोड़ों को भूसा खाना पसंद है. तो इसमें क्या हो रहा है? हॉर्स क्रिया क्या हो रही है कि घोड़ा, हॉर्स इज योर हॉर्स सब्जेक्ट है मैम. कौन कर रहा है? प्रेडिकेट. ओके, प्रेडिकेट. अब इसको छोड़ करके जितना भी बच गया, लाइक्स टू ईट है, दैट विल बी योर प्रेडिकेट. Predicate. सिंपल है ना? Yes, ma'am. Yes. Okay. So next thing is the students studied hard for the test. बच्चों ने एग्जाम के लिए बहुत कड़ी मेहनत की. ठीक है, The student हो गया मैम सब्जेक्ट. Yes, Student. that's very The good. student. The students, this will be your subject, right? Yes. And rest, Yes. studied hard for the test, that will be your predicate. ठीक है ना? Okay, shall we proceed to next? My mom loves me very much. मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है. तो who is the subject here? My mom. My mom. यहाँ बताया जा रहा है मॉम के बारे में, है ना? हम बता रहे हैं किसी ma'am. के बारे में. तो हम किसके बारे में बता रहे हैं? मम्मी के बारे में बता रहे हैं. तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट हो गया. और उसके अलावा जितनी भी चीजें बच गई कि वो कैसी है या वो क्या करती है, तो loves me very much, that will be your predicate. Simple. Predicate. Okay, next. My dad's cell phone has funny ring. Okay, मेरे डैड का जो सेल फोन है, मतलब मेरे पिताजी का जो मोबाइल फोन है, उसका जो रिंग टोन है वो बहुत ही मजाकिया है. मतलब इस तरह का है कि सुनकर हंसी आती है ना? हंसी निकल जाती है. तो किसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे? What will be the subject here? My dad. My dad. Okay, and cell phone has a funny ring will be your predicate. Okay, next, the bee drank the nectar from the flower. यहाँ बी के बारे में बताया जा रहा है कि मधुमक्खी जो है फ्लावर से शहद पीती है, लेती है या पीती है, जो भी आप बोलना चाहें. तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मधुमक्खी कर रही है ना? तो what will be the subject? The bee. The bee. That's the bee. The bee will be your subject. Okay. The bee drank the nectar. The rest drank the nectar from the flower will be your predicate. Okay. The next one is my parents
said that I could get a dog. मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि मुझे एक कुत्ता मिल सकता है. तो किसने कहा है? किसके बारे में बोला जा रहा है? पेरेंट्स My के बारे में. parents. My parents. So your subject will be my parents. This will be your subject. And said that I could get a dog will be your predicate. Yeah? Okay. My friends and yes. Ma'am, can we use my parent? No. Why, ma'am? Parent is for one. Two persons. Oh. Always in your parent, two persons are there. Your mother and father both are being included in your parents, right? Okay. Yeah. So my friends and I like to swing at the park. Now tell me what will be the subject here. My friend and I. Yes, because both are subject here. दोनों के बारे में बोला जा रहा है. मेरे फ्रेंड को और मुझे, हम दोनों को ही पार्क में झूला झूलना पसंद है. तो यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया my friends and I. That will be your subject. Okay. Mudge grew to be very large. यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हुआ Mudge. Okay. Henry and Mudge are best friends. Henry and Mudge अच्छे दोस्त हैं. So what will be your subject here? Henry and Mudge. Henry. Henry and Mudge. Mudge. Henry and Mudge के बारे में बोला जा रहा है. तो your subject will be Henry and Mudge. Okay. Henry really wanted a dog. Again, some information has been given about Henry. Henry के बारे में कुछ बोला गया है. तो subject क्या हो जाएगा? Henry. Henry. And rest, sorry, really wanted a dog will be your predicate. So I guess this much is for your class. I hope you all have understood. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Then that's all today. We will meet in next class. Thank you and have a nice day. Bye. Bye everyone. Bye. Bye bye. Thank you, ma'am.